उन बंदों को कैसे समझाएं जिनको भी एग्जैक्टली नहीं पता है साइबर सिक्योरिटी में, बट दे वांट टू एंटर इनटू दी साइबर सिक्योरिटी? अब वो बंदा अभी ग्रेजुएट हुआ है या फिर गैप हो गया है, नाउ वांट्स टू मेक अ करियर इनटू दी साइबर सिक्योरिटी। टेल मी शिवम, अपने एक्सपीरियंस से उसको क्या सजेस्ट करेगा? वो आपके मामा का बेटा है, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? आप जो भी सजेस्ट करने वाले, यू आर आंसरेबल। एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट मारा सर्टिफिकेशंस के नाम पर टू मच ईगो। आज मार्केट में ये सर्टिफिकेशन आया, कूद पड़े सर सब लोग कि भाई चलिए आज हम ये सर्टिफिकेशन करते हैं, कल को ये वाला सर्टिफिकेशन करते हैं, परसों ये वाला करते हैं। बट डू यू नो व्हाट दैट सर्टिफिकेशन डू? लैपटॉप है, ठीक है, उस लैपटॉप में अगर आपने एंटीवायरस डाल दिया तो आप उसको सिक्योर कर रहे हो। Right. किस तरीके से, किस चीज़ के लिए सिक्योर कर रहे हो? जिससे कि कोई मालवेयर आपकी मशीन पे ना आ पाए, कोई थर्ड पार्टी बंदा जो आपके मशीन को एक्सेस ना कर पाए। पहले तो आपको उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। उसको बताया जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं, फिर उनको किस सीक्वेंस में लगाया जाता है। देन यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर एनी साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू। Hello everyone, welcome to the another episode of our podcast series with the cyber security expert. And today I have Shivam with me. Hi Shivam. Hi. So Shivam, Nitin. you are already leading, you are already head of the department. So I want to know more about your profile in your words with all the limitations. Well, currently I'm dealing with multiple cybersecurity things, and I'm leading the complete umbrella of cybersecurity in my organization at present. And I've been through a lot. I've touched all the cybersecurity domains over the past decade and all. So it's been a very good transformative journey for me, from network security engineer to enterprise security architect. So I would say that it's a very transformative. The reason is like, when you are on network security, you are not able to understand like how the security actually works. So at the initial phase of time, you got to realize, okay, this is only about taking care of the routers, switches, firewalls and all, and then driven into the new setup called endpoint security, where you have to come from a mindset that, okay, now you have already taken care of the security gateway. Now how you have to secure each individual room inside the one building. So that's how I see the things, and getting more curious about like how the red team and blue team things will work in the side, and then landed up on security operations. After being there for substantial amount of time, I got to realize, okay, now it's time to I've done my part in the practitioner side, so moving up to the professional one. And thereafter I just landed into the GRC domain, where I've been getting some opportunities to take some good advantages of making some good decisions from the management perspective, and make them understand what is our A game plan, and transform that plan into the boardroom mindset. So this is how I grew up my complete transformative journey towards my decade of experience in cybersecurity. That's really amazing, and I have ample of question to ask. So forget that I have a network background or whatever the background I have. Now I would be sitting as a null zero into this domain, and the way I'm going to ask the question, this is the way I'm going to ask the question. So first I want to know more how you started your career, and I'll take you back to the network world when you were working in network security. Well, I started way back then. I was a mechanical design engineer actually. So the things happened like, I got some phishing emails Okay. on my during I'm thinking of switching to some other organization, and I got some phishing email from some very reputable one. So the domain seems little fishy. I was like, why is someone sending email with different domain? The company should have their own domain, but we Exactly. are getting it through. So that way we got to get some interest developed from that point. And I asked few of my friends who was part of the cybersecurity, who just recently joined the cybersecurity domains. I asked like how these things work, and they told me something. Okay, this is the kind of things happen. You have to check all the domains, and see if there will be any phishing link or some link is there, or some attachment is there. Just don't touch it. Don't access it first. I was completely unaware like what I have to do. I was a little scared of that particular thing. So I decided, let's just dig it down a little more. Moreover, as we go deep in deep, so I got to realize, okay, in depth, the curiosity takes me to this domain. I switched it to my profile from mechanical design engineer to this cybersecurity network engineer.
At the initial phase of time, just landed up on a very small scale industries. Okay, they are working for some third party vendors and all, and then thinking, getting my way navigated through multiple ifs and buts, and how I can improvise and how I can take the things more curiously. So that's how I move into this different verticals, having understanding about how businesses run, how things have been taken care of more appropriately, and then landed up in Dubai. It's a completely different perspective, different mindset. Here the things are like more culturally different, and if you have a very good you can say diplomatic assertive nature, and you must have some business literative. Until unless you don't have that thing, here the survival was difficult. So luckily I was being through all these things in a very regularly, and my skill sets matches their requirement, and from then it's you can say it's a legacy now. Yeah, that's great. So we'll go step by step again. Yeah. Okay, so you started in network security. Back then, where you are in Delhi or somewhere else? Well, I was in the neighboring states of Delhi because I started working in Faridabad. A very small scale industry which needs some network security. For example, 1 or 2 engineers are required just to have a connectivity between the two sites, or you can say a firewall, a basic firewall is there. So you need to ensure that the connectivity should always be there, so that the business discussions and business continuity will not impact, and the network connectivity will not get broken when they're having some communications over the time. So that way work there for a some time, and then look out for some other opportunities. Okay, how things, I mean, as I've told you earlier as well, that first you have to think like this is just you have doing the work as a security gateway. Right. Okay, you're standing on the gate taking control of the things. Now how would you secure each individual room? Right. My perspective is like I need to get into more on that part. So that curiosity, that, I mean, you understand, like cybersecurity is more of a game of curiosity, continuous curiosity, I would say. Because if you are keep on understanding, you want to be more curious. Okay, moving from network, then I move to endpoint. Their AV, how AV works, what all actions they can take, and how we can use this AV, what kind of actions they will take on what kind of things. For example, people say signatures. I don't know what was the signature at that time, so I got to realize, okay, hashes, signatures, and these kind of patterns will be called as the signatures. Then I got to know how we can create these rules on AV. Okay. Okay, what kind of rules we can create on the AV. Then moving up to the things, we got to know something eventually that okay, EDR kind of thing is also there. Right. So when we got to realize, okay, EDR is there. So how EDR works, what kind of protection it will provide. So these kind of things will get you more about a technology perspective, as well as how you can secure your environment. For me, you can say that when you have this kind of cybersecurity, it's just like securing your home. Yeah, exactly. So consider you are living in a building and you want to enter that building. So firewall just works like your premises, perimeter security. Right. The guard who's sitting on the reception is considered to be a firewall. Yes. You can say. Just to filter it out. Yes. Filter it out. Who will come enter the house? Who will enter the building? And who will live out? Yes. Simply. So, okay. Now I need the answer in a very layman language. So when you and you have curiosity. आपने बताया that यार मैं curious था. I'm that guy कि मुझे चाहिए कि क्यों हो रहा है. At certain point I'm a same guy. मुझे भी I have the questions. वो जो छोटे से माँ बाप को परेशान करते हैं ना, मॉम डैड, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हमें ऐसा क्यों करना है. सो दैट इज रियली गुड. तो यहाँ पे मेरे को पूछना है कि ऑलरेडी इनटू द नेटवर्क सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक इट्स ब्लू टीम, इज द रेड टीम. सो where you entered first? I think cyber security, if you are into the network security, already a part of defensive. Yeah. So how you upgrade yourself? कैसे entry exact कब लगा कि now it's a main part of the cyber security I'm managing? Well, and which team it belongs to? Acha. After going to the endpoint security, I landed up on one of the. पहले I want to know about the endpoint security. Yeah, endpoint security. It's all about securing your endpoints. ठीक है. Your endpoints could be anything. For example, your laptops, your desktop. servers, your phones, anything which have known as a host. So a person can easily understand the antivirus kind of thing. I mean, for example, if someone wants, अगर आपका laptop है,
ठीक है, उस लैपटॉप में अगर आपने एंटीवायरस डाल दिया तो आप उसको सिक्योर कर रहे हो। Right. किस तरीके से, किस चीज़ के लिए सिक्योर कर रहे हो, जिससे कि कोई मालवेयर आपकी मशीन पे ना आ पाए, कोई थर्ड पार्टी बंदा जो आपके मशीन को एक्सेस ना कर पाए। तो उन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हम लोग एंड पॉइंट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कहते हैं। एग्जैक्टली तो कैसे मिली एंट्री एंड पॉइंट सिक्योरिटी में? Actually, it was need of the hour of a kind of guy. Me, I want to be learning something new. What is endpoint security and all? There is an opportunity from the other side. They have a hiring. So at that time, people don't have this kind of mindset. Okay, they also don't know what exactly is in network security, endpoint security. So they want a guy who have a good skill sets on network, endpoint, and everything. So for me, it was a new one, endpoint security also. I have an interest. I have heard. I have read about it from multiple Google platforms and all, but don't have a complete hands-on experience on that thing. So हुआ क्या कि जैसे ही मैं उस एंटिटी में गया तो उन्होंने बोला कि आपको इतने सारे मशीन्स पे एंडपॉइंट डालना है या एंडपॉइंट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से AV डालना है। अब पता तो था नहीं डालते कैसे हैं, तो फिर एक स्टेप बाय स्टेप किसी फ्रेंड से रेफर किया कि अरे भाई तुम इम्प्लीमेंटेशन में काम किया है तो थोड़ा मुझे भी गाइड करो। दैट वे आई गॉट टू रियलाइज कि ओके दिस इज द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। उस समय ये भी 2-4 पे डालने के बाद कुछ एरर्स आए, तो फिर उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। तो अल्टीमेटली आपको पता चला कि कुछ स्टेप्स रहते हैं, उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। बिना उसके आपकी जो मशीन है वो सिक्योर नहीं हो पाएगी। वो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है। राइट। कोई भी नया बंदा है, अगर आप डरोगे तो आप शायद काम नहीं कर पाओगे। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या डिफेंसिव का ही पार्ट है? हाँ, ब्लू टीम। हाँ, डिफेंसिव का ही पार्ट है वो बेसिकली एंड पॉइंट सिक्योरिटी। बट ये है कि आप उसको ऑफेंसिव वे में कैसे यूज कर सकते हो। ओके। वो है कि आप कैसे चीज़ों को बाईपास करते हो। अच्छा, हाँ। बेसिक सिंपल। यस, आपने एक रूल बना दिया, उस रूल को बाईपास करने का तरीका कैसा है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में चला जाएगा, और उसी रूल को कंप्लाई करके आपको नॉर्मली फॉलो करना है। दैट इज नॉट डिफेंसिव सिक्योरिटी कि भैया आज अटैक होगा, कैसे होगा वो ऑफेंसिव वाला कोशिश करता रहेगा। बट आपने अगर अपने रूल्स, अपने माइंडसेट, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके उसको उस तरीके से बनाया है कि कोई भी बंदा आपके जो सिक्योर पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स आपने क्रिएट किए हैं, उसको ब्रीच ना कर पाए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी। फिर आगे क्या सीखा और फिर साइबर में? उस समय बेसिकली अगर आप उस एरा पे जाओगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीवन। देन एंड पॉइंट सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होती थी, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आपके पास नए नए टाइप के रिक्वेस्ट आती थी कि भैया आपको डेली के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एक रिक्वेस्ट टिकट आती थी कि आपको इसको USB एक्सेस देना है, इसको USB एक्सेस नहीं देना है। अच्छा। या फिर आपको किसी को ये वेब कंट्रोल्स अलाउ करने हैं या नहीं करने हैं, कि अरे आपकी जो फाइल है वो क्वारंटीन हुई या क्लीन हुई या फिर डिलीट हो गई। तो वो सारे टाइप की चीज़ें आती थी। अगर ठीक है ये हमारे को USB अलाउ करना है, ये फाइल्स ट्रांसफ़र हुई, आपको वो विजिबिलिटी मिल रही है, बट पैरेलली बट आपको ये भी चीज़ समझ नहीं आने लगी कि एंटीवायरस ने उस पर एक्शन क्या लिया और क्यों वो एक्शन लिया। क्या आप उस एक्शन को डिफरेंट वे में कर सकते हो, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो डिफेंसिव साइड में तो आपको ये पता चला कि अच्छा ठीक है हमने उसको रूल्स बना के सिक्योर कर लिया, बट ऑफेंसिव साइड में आपने ये उसको किया कि अरे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं तो मैं तो डायरेक्टली किसी की भी मशीन में एंटर कर सकता हूँ ना, किसी के नेटवर्क में एंटर कर सकता हूँ। एंटर हो गया फिर तो आप इधर से उधर, उधर से उधर आप लिटरली मूव कर सकते हो। तो उसके लिए कोई व्हेन यू मूविंग आउट आपने और सीखना शुरू किया तो स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज, कुछ सीखी? मैंने बेसिकली उस टाइम पे थोड़ी पाइथन के ऊपर अंडरस्टैंड किया था, और उस समय मालवेयर एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिमांड में अचानक से आ गया था, क्योंकि सबके सामने एकदम से नया नया आया, अरे मालवेयर एनालिसिस तो पता ही नहीं था। अब दैट वे यू गॉट टू नो कि मालवेयर एनालिसिस आप करते हो, बट करोगे किस पे? यू नीड अ सैंडबॉक्स। अच्छा। अब वो सैंडबॉक्स है क्या, कैसे यूज़ करोगे उस सैंडबॉक्स को? तो अच्छा उस समय पता चला यू कैन सेट अप योर ओन सैंडबॉक्स ऑन अ लिनक्स मशीन। ओके, कुकू सैंडबॉक्स नाम की चीज़ है। अब उसको सेटअप कैसे करना है ये तो पता ही नहीं था। तो अब आप उसके लिए और स्टडी करते हो, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, और हेल्प जनरेट करते हो। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स आप हैंड्स ऑन करते हो, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि येस आई एम गुड इन दिस डोमेन, आई एम डूइंग समथिंग गुड। आफ्टरवर्ड्स आई लैंडेड अप ऑन दिस सॉक। अच्छा, सॉक का क्या है कि क्योंकि दो चीज़ें तो समझ में आ गई थी।
कि नेटवर्क कैसा काम करता है, एंड पॉइंट कैसा काम करता है। बिल्कुल सही बात बट है। वो कलेक्टिवली कैसा काम करते हैं, दैट आई लर्न इन सॉक। ठीक है। कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली ये चेक करना है कि भाई मैं एक कुछ ऐसे रूल्स बना लूँ, ठीक है, नेटवर्क के अलर्ट्स अलग आ रहे हैं, एंड पॉइंट्स के अलग आ रहे हैं, अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं दोनों को एक टाइम पे कैसे हैंडल करूंगा। पॉइंट देयर आर मल्टीपल अलर्ट्स, फॉल्स पॉजिटिव्स भी होते हैं, ट्रू पॉजिटिव्स भी होते हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन आता है सिम। मैं भी पूछने वाला था। हाँ, तो सिम के लिए एक उस समय क्या क्या था कि आपके पास मल्टीपल सिम्स जो उस समय मार्केट में थे, दैट वाज लाइक माइक्रो फोकस, जिसमें आपका HP का आक्साइड था। ठीक है। राइट नाउ दिस इज कॉल्ड माइक्रो फोकस। स्प्लंक जस्ट आया था, एंड द अदर वन इज क्यूरेडार। तो आप उनके ऊपर ही आप अलर्ट्स को एनालाइज करते थे, लॉग्स को एनालाइज करते थे, क्योंकि उनका जो सिस्टम ही है वो ऐसा है कि आपको नॉर्मलाइज करके बताएगा, आपको प्रॉपरली जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए अलर्ट्स, वो कोरस्पॉन्डिंग वे में आपको कोरिलेट करके बताएगा कि भैया आपके घर में आज यहाँ पे ये, आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ये बंदा एंटर हुआ इस टाइम पे, और फिर उसने इस चीज़ को एक्सेस किया, इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश करी, जिसको आपके एंड पॉइंट ने रिजेक्ट किया या फिर उसको रिस्पॉन्ड किया बेस्ड ऑन द रूल्स दैट यू हैव क्रिएटेड ऑन दिस वन। तो अब उसके मल्टीपल रूल्स आने लगे, तो फिर उसको डिफेंड करने के तरीके समझ में आने लगे। फिर पता चला कि अच्छा नेटवर्क और भी बड़ा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अच्छा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आती हैं, वो अलग किस्म से आ रही हैं। नेटवर्क पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, वो अलग किस्म से हो रहा है। एंड पॉइंट पे बंदा, अब यूएस भी उस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था, तो हर कोई यूएस में कहीं पे मिला, लगा दिया मशीन में। दे प्लग इनटू इट एंड दे फील लाइक ओके वी गॉट दिस काइंड ऑफ डेटा एंड दैट इज ट्रू, दैट इज गुड। बट यू डोंट नो कि वो जो डेटा है दैट इज पर्पसफुली लेफ्ट इट देयर जस्ट टू मेक यू फॉल फॉर दैट थिंग, आपको फिश करने के लिए, राइट, या आपको आपकी मशीन में मालवेयर डालने के लिए वो सब चीज़ें डाली जाती हैं। फिर अब डिफेंसिव साइड तो समझ में आ गई एक समय के बाद, अब सॉक भी अच्छे से आ गया, सॉक समझ सारे में आ टूल्स गया अच्छे से हैंड्स धीरे ऑन कर धीरे, लिए। क्योंकि आप जितने जितने सॉक एनवायरमेंट्स में काम करोगे, मल्टीपल क्लाइंट्स में काम करोगे, उनका एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो आपको स्टार्टेड विद द L1 या डायरेक्ट L2 सॉक या हायर लेवल I से? started with the L1, then grew into the L2, and then learning about how you have to set up the rules and all this kind of things, then L3. ठीक है. So दुबई आते साथ मेरी ये स्किल्स डेवलप हो चुकी थी L3 लेवल की। So now when you reach out to the Dubai, when you come to the Dubai, so now you are into the GRC. Yes, I landed up in GRC after being there for 2 years. So it's get a chance or you intentionally come to the I GRC? intentionally changed my domain from SOC to GRC. The reason is like I've been there for a substantial amount of time. I've given my decade of experience in practitioner as a practitioner. Now it's time to move on a professional world, professional side. Point. Because if you don't know, if you have did your hands dirty, you know what all challenges you have. Point. So to make it understandable from the boardroom side, the management side, what you have to do is come to that side of the thing. Then only you will make them understand management. Okay, this is my A plan. This is what we have done. This is how we have draw our defensive plans. Now, what we expect from them, from the management, they are not technical. Right. Right? They are also busy. So you need to learn that language, how you have to highlight the risk to the management. Excellent. बिल्कुल सही बात है. तो जब तक आप उनको रिस्क नहीं बताओगे, जब तक आप उनको बताओगे ही नहीं कि भैया इशू है क्या, then both the parties are struggling. नीचे वाले ऊपर को बता नहीं पा रहे, ऊपर वाले नीचे वाले को समझ नहीं पा रहे. And there was a session on it in JISEC. Yes. यहाँ पे इसके ऊपर एक सेशन भी हुआ था. हाँ. Continue. Amazing. So basically यही एक कंस्ट्रेंट था जिसको मैं सॉल्व करना चाह रहा था मेरी पर्सनल उसमें. मुझे लगा कि I've been there for practitioner side for a good time, substantial amount of time. Now it's time to move into the management side. Just understand like how we can take the decisions, because sometimes you have to make your juniors also, your team members also, make them understand, okay, this was the right reason that we have taken this particular decision from the management side. From them, it's always like they are not allowing us to do this, that, and everything, these kind of things. But from management side, you have to be very careful, because whatever decisions you are taking, it will have some severe impact also. You have consequences if something you allow. For example, there is आप अपने सॉक वालों को बोलो कि आप IPs ब्लॉक कराने के लिए रेस कर रहे हो. If that IP belongs to Microsoft, okay, Microsoft की आपकी सर्विसेज भी चल रही है, आपने तो ध्यान दिया नहीं, सीधे ब्लॉक कराने के लिए रेस कर दिया. नेटवर्क टीम वाले ने बिना कुछ सोचे ब्लॉक कर दिया. बिजनेस कंटिन्यूटी खत्म.
बिजनेस हैम्पर हो गया, हु विल आंसरेबल टू द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बोलेगा भैया मेरा तो इतना लॉस हो गया, कौन उस पर ध्यान देगा? सही बात है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बिकॉज ऑफ Right. बिजनेस एवरीथिंग इज रनिंग एट द बैक एंड. ठीक है। अगर बिजनेस नहीं रन करेगा तो बैक एंड में आप कुछ भी रन नहीं कर पाओगे ना. दैट इज द मेन क्लैरिटी थिंग. तो अब टोटल ऑलमोस्ट ये सब कुछ ट्राई कर लिया है, हाँ, मतलब आई हैव टच्ड अपॉन ऑल द डोमेन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. अब क्या प्लान है आगे का? अब थोड़ा सा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को और अच्छे से एंटरप्राइज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए, डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए, बिकॉज हियर द AI इज ऑल्सो इन द प्लेस. So how we can use the AI in a better way so that we can ease off our load from the all distinctive teams. For example, from SOC team, मैं वही पूछने वाला था। from our GRC team, यस। from our network team, how we can reduce the load on their head. That is my understanding and my objective at present. Because until unless you have that kind of clarity in your mind, you cannot take your step towards it. To meet your objective, you have to take the first step, and you need to have a proper strategical mindset on that. So understanding from my certifications, which give me a purpose, how we have to move, what we have to do move, and then we have landed up on the next one. Okay, this is we have achieved. This is the mindset. This is the framework. How we can achieve with the help of regular this compliance regularities and legal regularities, these kind of things. अभी जैसे लॉट ऑफ थिंग्स यू आर मैनेजिंग इनटू द सिक्योरिटी, जो वट एवर इज योर करंट कंपनी, डू यू रियली फील कि नहीं यार दिस इज समथिंग आई शुड ऐड मोर अभी राइट नाउ सो आई कैन मैनेज इट एफिशिएंटली? ऐसा कुछ है अभी? स्किल्स. एब्सोल्युटली. तो कौन से स्किल्स? देखिए, ऐसे समझिए कि जब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और आपके पास टेक्नोलॉजीज पे काम करने की स्किल्स नहीं है, तब तक आपके पास एक वॉइड हमेशा ही रहेगा. ठीक है, वेरी गुड. अंडरस्टैंड, टेक इट लाइक दिस. आप सारा काम करना जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट, ठीक है. एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट, तो आपका पर्पस फुलफिल ही नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, बिल्कुल. दूसरी चीज़, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखो, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू टेल मी हाउ थिंग्स विल वर्क, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, तो मैनेजमेंट का भी पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है. बिल्कुल सही बात है. तो आप उस स्किल के ऊपर क्यों काम नहीं करते हैं लोग? एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट मारा सर्टिफिकेशंस के नाम पर. दे आर टू मच ईगर. आज मार्केट में ये सर्टिफिकेशन आया, कूद पड़े सब लोग कि भाई चलिए आज हम ये सर्टिफिकेशन करते हैं, कल को ये वाला सर्टिफिकेशन करते हैं, परसों ये वाला करते हैं. बट डू यू नो व्हाट दैट सर्टिफिकेशन डू? इट इज़ जस्ट अ गेटवे. एग्जैक्टली. You will take your skills only to the next level. Until unless you don't have that skills, the subject matter expert knowledge, you will not do anything. Fact. Your certifications may not expire, but your skills will not. They'll expire. Exactly. You yourself is a CSSP certified. Yeah. So what makes you feel कि चल यार अब CSSP कर लेते हैं? Let's go and go for the As CSSP. I've told you that मेरे को मैनेजमेंट साइड में मूव होना था. तो जब तक आप CISSP करके, CISSP is a complete spectrum of cybersecurity. It contains all 8 domains. So हर डोमेन को आपको टॉप टू बॉटम टच करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन ओनली यू विल टेक द डिसीजन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड. अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपने उस डोमेन में कभी काम ही नहीं किया, तो आप वो स्ट्रेटेजी वो माइंडसेट कैसे डेवलप करोगे? नहीं कर पाओगे ना. और उसी के साथ आप वो डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. Whatever decision you are going to take, okay, it involves budget, commercials also, resources, time, and reputation. All 4 points are there. If you don't have that mindset, how we can control, how we can ensure that all 4 things are used in a proper way, then how would you use it how would you move to the next way and take the right decision from it? Absolutely correct. तो अभी आगे कोई सर्टिफिकेशन का प्लान है कि मुझे करना है? I'm lacking है. ऐसा नहीं है. सर्टिफिकेशंस विल कम एंड गो. जस्ट कि आज को लगता है कि शायद आई एम लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर स्किल सेट, सो नेक्स्ट मैं उस सर्टिफिकेट के लिए प्रिपेयर करता हूँ जस्ट फॉर द रोल पर्पस, नॉट ऑन कि मेरे को अपना प्रोफाइल बस एड अप करना है.
until एज I've told you, जब तक आपके पास वो स्किल नहीं है एक्सप्लेन करने वाली, आपने काम नहीं किया होगा उस चीज़ के ऊपर, तब तक आप मैनेजमेंट को कुछ नहीं बता पाओगे. Today or tomorrow you will land up on that one specific point. You feel कि why I have done this certification because it has no relevance. सर्टिफिकेशंस करके भी आप रेलेवेंस नहीं उठा पा रहे हो, और अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है काम करने की, तो आप सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू गेन कर रहे हो. सर्टिफिकेट्स आपको बस एक स्टोर से नेक्स्ट स्टोर पे लेके जा सकती है, या फिर आपको वो चीज़ बता सकती है कि ओके यू हैव बीन सर्टिफाइड, सो यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग टू टेक सम डिसीजन ऑफ इट. आपको उस माइंडसेट के लिए बता देता है सर्टिफिकेट कि हाँ आपका भी माइंडसेट है, आपने उस तरीके से उस माइंडसेट के हिसाब से काम किया हुआ है बेसिक फैक्ट है. बट उसमें आपने एक्सपर्टीज कैसे लेनी है, दैट इज ऑल्सो ओनली विद द हेल्प ऑफ स्किल्स दैट यू बिल्कुल पॉइंट है. तो जब इसमें काम किया शौक में, तो थ्रेट मैनेजमेंट या उसमें कुछ मिला काम करने को? थ्रेट मैनेजमेंट, थ्रेट हंटिंग, बहुत बहुत ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी वाइज काम करने को मिलता है. अच्छा, आप उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है? दैट्स इफ आई वांट टू वर्क इनटू दिस. आप डेली अपने काम से ही सीख सकते हो. ओके. स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत क्या है? आप जो डेली टास्क कर रहे हो, ठीक है, आप उसी में देखो ना कि वेयर इज़ द गैप. वेयर इज द गैप? यू हैव टू सी. आप थ्रेट जितने भी थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स हैं, ठीक है, ओपन सोर्स थ्रेट फीड्स हैं, उनको रेफर करो. फॉर एग्जांपल समवन इज सेइंग कि अरे रैंसमवेयर हो रहा है, बट आप उसके टेक्निक फॉलो करो ना. अगर आप उसको डिफेंड करने के लिए जाते हो तो सी कि आपको हंट क्या करना है. उससे रेलेवेंट IOCs आपको मिलते हैं, उससे रेलेवेंट आपको टेक्निक टैक्टिक्स मिलते हैं, तो आप अपने रूल्स उस हिसाब से बनाओ कि वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है आपके एंटिटी में तो वो डिटेक्ट डिटेक्ट हो जाए. राइट. तो ये सब हो गया. VAPT के बारे में कुछ सोचा? VAPT किया, करा. Okay, but great. not on a larger extent because you are on a blue team side. Yes. VAPT comes on a red team Red side. team. तो आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने रखी, Okay. बिकॉज होता क्या है ना, VAPT जिन्होंने करी, यू हैव टू वैलिडेट वेदर दे आर प्रोवाइडिंग द राइट रिपोर्ट टू यू और नॉट. तो वो अंडरस्टैंडिंग तो आपको रखनी पड़ेगी. वो अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आपको उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप स्विच नहीं कर सकते ब्लू से रेड में, रेड से पर्पल पे. सो नाउ आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप पर्पल टीम पे ज़्यादा प्रेफर करते हो. आपकी टीम के अंदर ही अच्छा 4 लोग ब्लू टीम के हैं, 2 बंदे रेड टीम के हैं, इस तरीके से आपकी पर्पल टीम रेडी हो जाती है. Majorly क्या करते हैं पर्पल टीम वाले? बेसिकली पर्पल टीम वाले ये करते हैं कि आपके जो डिफेंसेस हैं उसको वो रेजिलिएंट बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी रेड टीम को मैंने बोला कि आज तुम इस एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है. ठीक है, आपने प्रॉपर कोशिश करी, आपने उसको पेनिट्रेट करने की जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो ट्राई किए, ठीक है. आप समहाउ पेनिट्रेट कर गए, तो आप बताओगे कि भाई ब्लू टीम वाले को कि दीज आर द गैप्स. These are the gaps. और आप ये भी बताओगे अरे आपको इस टाइप के रूल्स बनाने चाहिए. तो बोथ टीम्स आर वर्किंग टुगेदर टू मेक योर एंटिटी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अटैक. ठीक है. तो उस तरीके से पर्पल टीम काम करती है. और इसके लिए आपको स्किल्स धीरे धीरे करके डेवलप करनी पड़ेगी. जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हाउ फायरवॉल वर्क्स, हाउ फायरवॉल रूल्स वर्क, हाउ एंड पॉइंट सिक्योरिटी वर्क्स, हाउ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वर्क्स, हाउ योर अदर IDS, IPS and other network and security solutions works, तब तक आप उस चीज़ पे काम ही नहीं कर पाओगे. People don't understand the basic difference between authentication and authorization. बिल्कुल सही. जब आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रखते हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे. इन्फो सिक्योरिटी के बारे में क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली अगर आप देखो, अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी. Cyber security is all about digital world. Information security is, along with the cyber security, you have put the physical security in it. Excellent. Simple point. In the simple words, this is the way. What options we have into the information security, that GRC? Well, you can go for a risk assessment, risk management thing, risk consultant you can become. There you don't need to have too much of in-depth of understanding about the technical things, but a basic understanding is required. Because to analyze the risk, you need to know what exactly that risk poses. Okay, what will the impact of that particular vulnerability that has been exploited, that can be exploited by any of the threat actor. So
उस चीज़ को आप समझ में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, एक एंड पॉइंट है, उसको सिक्योर करने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, या उसके अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं. ठीक है. अगर आपने उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट होने से बचा लिया, आपने वो रिस्क को रिड्यूस कर दिया. बट फॉर दैट देयर इज़ अ कंप्लीट लाइफ साइकिल. वो मैनेजमेंट का पूरा अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल है. वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है. अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे देन अगेन देयर विल बी अ चैलेंज फ्रॉम कंप्लायंस एंड. तो information security has a huge spectrum just like cyber security, but Correct. added one from the cyber security, that is physical security. Exactly. So now अब आप सोचो कि अगर आपके रूम में एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, वो कैमरा आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स लेके बैठा है. अगर आप सॉक रूम में कोई कैमरा लगाते हो तो आपके डैशबोर्ड्स की सारी डिटेल्स उधर जा रही हैं. बिल्कुल सही है. अब दैट कैमरा इज हैक्ड, the attacker don't need anything else. He Simple. got to know what is exploitable in your environment. Right. Somehow you got to know ना what all type of alerts are there. Exactly. तो आपकी सारी डिटेल्स तो उसके पास वैसे भी पहुंच जाएगा, पहुंच गई. इनडायरेक्ट वे में पहुंच गई. Right. देन ही कैन लुक आउट फॉर द वेज टू पेनिट्रेट इन योर एनवायरनमेंट. तो व्हाट यू सजेस्ट, अगर कोई 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्क सिक्योरिटी में, या फॉर एग्जांपल सॉक में भी बंदे ने काम कर लिया है, तो उसको कौन सा अब सर्टिफिकेशन आगे करना चाहिए? वो CSM में जाए, वो सीसा में जाए, वो CSSP, क्या चूज़ करे? देखिए, फर्स्ट ही और शी मस्ट बी वेरी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव. ठीक है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस स्किल के लिए बने हो. आप ये थोड़ी ना है कि हर कोई मैनेजमेंट स्किल्स के लिए ही है. राइट. अगर आपको लगता है यू आर गुड एट टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, then you can go for a professional certifications like CISM, CISA, or you can say CISSP. But if you think like, okay, I want to grow more into this practitioner side, go for a threat hunting, incident response, threat intelligence. These kind of things are gives you more value than professional certifications, because professional certifications will take more time. Parallelly, they need more understanding from the concept. These things you are doing on a regular basis, so you can directly relate it to your things and apply it directly to your environment. राइट. तो अगर आप जितने भी सर्टिफिकेशंस करना चाहो कर सकते हो, बट अगेन योर स्किल्स इज द की टू नेविगेट इट टू द नेक्स्ट लेवल. उन बंदों को कैसे समझाएं जिनको भी एग्जैक्टली नहीं पता है साइबर सिक्योरिटी में, बट दे वांट टू एंटर इनटू दी साइबर सिक्योरिटी? तो क्या करें? उनके पास एक्सपीरियंस चलो है नेटवर्क सिक्योरिटी का, बट दे नो दैट फ्यूचर इसमें ही है साइबर सिक्योरिटी में. तो व्हाट शुड आई रिकमेंड, यू सजेस्ट मी? देखिए, आपके पास बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आप एक बेसिक सर्टिफिकेशंस आप CHFI ECIH कर सकते हैं, जो आपको इंसिडेंट हैंडलर के माइंडसेट के बारे में बताएगा कि कोई इंसिडेंट हुआ, आप सॉक में चले जाइए, CSA कर लीजिए, सॉक में चले जाइए. EC काउंसिल के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं बेसिक लेवल के जिसमें आप जा सकते हैं. सांस के हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं. INE के हैं. There are multiple other platforms, which gives you very good understanding about the certifications and how SOC or blue team or red team works. आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद यू कैन अप्लाई इन अ प्रॉपर वे, कि आपके पास वो स्किल्स पोजेस कर लिया आपने समझा कि अच्छा ठीक है, और दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग सम रेफरेंसेस. ओके, दे कैन ट्रेन यू वेल in the real time scenarios environment, and then you can move forward to the specific you can say profile that you are looking to get into. That way you can drive it through, or else there is no direct entry in cybersecurity. You can first of all, I've seen in the many of the people, I've talked with many of the youngsters, they are saying that what is cybersecurity? If I ask them, they said to hack someone's account is called cybersecurity. It's Right. They have this kind of mindset. So first, they have to come out of this dilemma or myth that okay, cybersecurity is just about hacking the things. First of all, hacking the things is not a correct thing. It's a offensive side. Right. Okay, and you maybe get penalized for that offensive activity that you may conduct, because that is against the state of the law of the land. So you have to be very careful when you are acting in cybersecurity. Right. You have certain limitations also, how you have to act. You have to comply with the SOPs, the standard operating procedures, just like your army or defense things. We are also the same guys.
but we are taking care of the cyber wars rather than on a physical wars. Conversation. So we talked about the SOC, we talked about the GRC, we talked about the VAPT, and somewhere like it's in the SOC we covered this threat hunting part as well. So anything else that we थ्रेट left? हंटिंग पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा. थ्रेट हंटिंग के लिए ना पीपल डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज थ्रेट हंटिंग. ठीक है. लोगों को बस एक ये लगता है IOCs को स्वीप मार नेटवर्क स्वीप मार के चेक कर लिया, Okay. थ्रेट हंटिंग हो गई. बट एक्चुअली थ्रेट हंटिंग इज नॉट दैट थिंग. थ्रेट हंटिंग में आपको सोचना पड़ता है कि आप हंट क्या कर रहे हो, किस थ्रेट को आप हंट कर रहे हो, उसका प्रॉपर टेक्टिक क्या है, टेक्निक क्या है. इफ़ यू वांट टू अ करेक्ट प्रैक्टिस टू नो, go MITRE ATT&CK defend, MITRE ATT&CK framework. They will tell you each and every step. Refer it. Try to hunt it using those tactics and techniques. Think like an attacker. Then only you will be able to hunt down the things. Or else, just network sweeping the IOCs doesn't make you a threat hunter. In this area, threat hunting is a very demanding, Okay. because you have to think like a threat actor, making the things, all the activities, think like that, and then you have to detect those things using your security solutions or SIM, whatever you run the query on. So उस पे अगर आपने अच्छा कमांड कर लिया, तो that gives you a very good satisfaction about like what you have done in the recent time and how you want to achieve in something which is more relevant with the cybersecurity and the upgrowing threat landscape. आपको जब तक आपने थ्रेट लैंडस्केप समझा ही नहीं, तब तक आप थ्रेट हंट करोगे क्या? अंडरस्टैंड द थिंग्स. जब तक आपने उस एनवायरनमेंट में काम ही नहीं किया, जब तक आपने थोड़ा टाइम देके, तभी तो आप सोचोगे कि भाई दिस इज द वे वेयर वी हैव टू मूव यूजिंग आवर रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, मेरे को फायरवॉल के रूल्स पे मैं ऐसा क्या निकाल सकता हूँ, कोई गैप है क्या, वो गैप को हंट करने का काम है थ्रेट हंटिंग का बेसिकली. Okay. वो गैप असेसमेंट नहीं है, बट वो थ्रेट हंट है फ्रॉम आर साइड. दिस विल बी कंडक्टेड बाय आर SOC टीम, द ब्लू टीम साइड. ठीक है, ये सब हो गया. इसके अलावा भी कुछ साइबर सिक्योरिटी में दैट वी आर मिसिंग कि इसमें भी टेस्टिंग या ट्राई कर सकते हैं? देखिए, cyber security, it's a completely continuous curiosity kind of game. So all 8 domains have something different. आप चाहे रिस्क में चले जाइए, आप चाहे SOC में चले जाइए, आप IR में चले जाइए, आप GRC में चले जाइए, आप एंटरप्राइज सिक्योरिटी में चले जाइए, हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा. आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो. राइट. बट अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट लैंडस्केप, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लैंडस्केप, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके ही आप कुछ कर पाओगे. वरना आप कोई भी स्किल सेट कर लो, उसका यूज़ जब तक आप नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली बिजनेस अलाइनमेंट के हिसाब से, दैट इज गोइंग इन अ वेन. ग्रेट. चलो, अब लेट्स कम दिस टू द डिफरेंट पिक्चर. अब Yeah. मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ कि यार समवन इज देयर रियली इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू द नेटवर्क सिक्योर, आई मीन साइबर सिक्योरिटी. अब वो बंदा अभी ग्रेजुएट हुआ है या फिर गैप हो गया है, नेवर वर्कड, 2-3 साल का गैप हो गया या ढंग से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाया है. नाउ वांट्स टू मेक अ करियर इनटू दी साइबर सिक्योरिटी. सो टेल मी शिवम, अपने एक्सपीरियंस से उसको क्या सजेस्ट करेगा? ही मे बी वो आपके रिलेटिव है, आपके किसी ताऊ चाचा का बच्चा है, मामा का बेटा है, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? पर्सनल है, मतलब उसका आंसरेबल हो आप. जो भी सजेस्ट करने वाले यू आर आंसरेबल, तो कैसे सजेस्ट करोगे उसको? देखिए, पहले तो आपको उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी होती क्या है. ठीक है. ठीक है. सिर्फ वर्ड बोल देने से साइबर सिक्योरिटी डजंट साउंड्स लाइक कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो. यू मस्ट नो कि वेदर यू हैव दिस क्यूरियोसिटी to go into the things, to deepen down, to check, okay, I can scratch it, I can go for them. आप 1000 लॉक्स पढ़ना, आप उनको लॉक्स पढ़ना सिखाऊं मैं. ठीक है कि अच्छा चलो ये फायरवॉल के लॉक्स हैं, आप उसको रीड करना सीखो, या ACL की पॉलिसीज़ हैं, उसको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाएगा. उसको बताया जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं, फिर उनको किस सीक्वेंस में लगाया जाता है, फिर वो कलेक्टिवली कॉम्प्रहेंसिवली कैसे काम करते हैं. जब तक आप ये सारी चीज़ें उनको बताओगे, उनका आइडिया थोड़ा डेवलप होगा. फिर आप बताओगे अच्छा इसमें से हम फायरवॉल के लॉक्स ऐसे रीड करते हैं, अगर इसमें ये कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है या इनसे समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको उसमें मिलता है,
तो उसको आपको कैसे रीड करना है और कैसे उसको रेज करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है कि भाई कितने से कहाँ कितने टाइम का ट्रैफिक आपको देखना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सिखानी पड़ेगी। फिर उसको बताया जाएगा अच्छा चलिए आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारे काम कर लिए, दीज आर द स्टेप्स। फिर आप उसको बताओगे देखो देर आर 3 टाइप ऑफ टीम्स। वन इज GRC जो कि आपकी टेक्निकल नहीं है ज़्यादा, बट दे आर मोर ऑन अ मैनेजमेंट साइड, जो कि आपको पॉलिसीज़ में बनाने के लिए बताएगा, पॉलिसीज़ बनानी कैसे हैं, किस बेसिस पे पॉलिसीज़ बनानी है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई देखो टेक्निकल साइड में देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट आप उसके रूल्स डिफाइन करने हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के, तो उसके लिए माइंडसेट क्या चाहिए, या फिर आपको वो जो रूल्स बन गए उसमें से जो आपके मल्टीपल लॉक्स जनरेट हो रहे हैं उसको रीड कैसे करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ईदर गो फॉर 1 और 2 सर्टिफिकेशंस जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा उस चीज़ के लिए कि कलेक्टिवली ये सारे काम कैसे करते हैं। तो आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी हो गया। देन यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर एनी साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोटोकॉल्स क्या हैं, काम कैसे करते हैं, किस पोर्ट पे काम करते हैं। ये अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, स्टिल देयर आर पीपल व्हेन वी हैव टेकन द इंटरव्यूज, तो उसमें क्या होता है कि ये गैप्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। पीपल डोंट नो TCP/IP मॉडल क्या है, OSI लेयर मॉडल क्या है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ दीज वर्क, विच प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच लेयर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप समझ पाओगे हाउ थिंग्स हैव बीन वर्किंग इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होना है तो आप पहले बेस पे काम करोगे। डायरेक्टली अगर आप लैंड अप हो जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है और करेंगे कैसे। So both things you are in a very difficult situation to handle. So the best way is to go step by step approach. Take some time, learn about network security. Take some time, learn about the endpoint security. Take some time, learn about the web application security, how these things are there, how we have to secure them. Then you have a basic collectively idea on it. Move it. Try to look out for some good opportunities in the. I mean, you can try it or shadow some do some internship from good companies who are providing, because on corporate CSR model के हिसाब से many corporates are giving this opportunity to many individuals who wants to enter into the cyber security domain. तो जैसे मैं एक फॉर्मेट यूज़ करता हूँ अपने जो मेरे से रेफरेंस लेते हैं या मेरे से हेल्प मांगते हैं, आई यूज़ टू ट्रेन देम फर्स्ट ऑन द नेटवर्क, थोड़ा एक्सपीरियंस भी दिलाता हूँ, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाट यू हैव डन एक्चुअली, और फिर देन आई आस्क देम टू गो टू द साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे मेरा माइंडसेट रहता है कि यार दैट डिपेंड्स कि वो एक बंदा काम कर लेता है, पैसे कमाने लगता है, तो उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर। क्योंकि जब वो 23-24 अभी करियर स्टार्ट किया तो थिंग्स आर डिफरेंट, उसको लगता है बहुत पढ़ लिए एंड दिस इज इनफ, उसको ही नहीं पता अभी तो बहुत पढ़ना है राइट। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि देन देयर इज़ अ टाइम कि वो डिसाइड कर सकता है कि ठीक है यार मैं थोड़ा बहुत सीख के आई कैन गो इनटू द BAPT, थोड़ी पेन टेस्टिंग करनी शुरू कर दी या फॉरेंसिक में चला गया मैं, और अगर नहीं हो रहा तो GRC दे कैन प्लान इनटू दी डिफेंसिव में ही आ गया, एंड पॉइंट ईजी है, सबसे ज़्यादा एंड पॉइंट में ही बंदा हिट मारता है डिफेंसिव वाला। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। तो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद दिस प्लान ऑफ एक्शन? आई थिंक इट्स द राइट अप्रोच आई वुड से। द रीज़न इज़ कि जब आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, आप उसको डिफरेंट वर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, तो अब नेक्स्ट उसके ऊपर है कि उसको किस डोमेन में मूव करना है। अगर आप बोलते हो कि देयर आर पीपल हु वांट्स टू डू किस एवरीथिंग हर डोमेन में कर लेते हैं इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, विच इज़ नॉट फिजिबल एक्चुअली, राइट। तो आप अपना एम करो, ऑब्जेक्टिव बनाओ कि ठीक है मेरे को आई फील मोर कंफर्टेबल इन फॉरेंसिक्स, तो मैं फॉरेंसिक्स की ओर देखता हूँ कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या चांसेस मेरे को मिल सकते हैं, क्या क्या थ्रेट लैंडस्केप है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या काम एग्जैक्टली होते हैं। गेट इन टच विद दोज काइंड ऑफ पीपल, मेक देम अंडरस्टैंड ऑन अ डेली ऑपरेशनल वे हाउ दे हैव ऑपरेटेड, क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट आता है उस दिन लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है। एवरीवन इज सेइंग इंसिडेंट आ गया। Until unless you understand the criticality of that incident makes no sense to you. For management, every incident is same. They got to realize when some compliance things come into play, and they got to know, okay, now we have been penalized for something,
And now, how would we have to respond back on this? For example, audit ही आ गया तो ऑडिट में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लोगों को नहीं पता। लोग लगे पड़े हैं कि भाई वो ऑडिटर मांग रहा है कुछ और रेफरेंसेस एविडेंसेस, लोग कहते हैं वो तो हमने प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं करते। तो दीज थिंग्स आते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप चूज़ करें कि आपको एग्जैक्टली जाना किस पाथ पे है, या फिर आप सोचते हो कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर पाथ पे पहुंचना है, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन रिक्वायरमेंट्स को आप टच करते चलो तो आप मे बी वहाँ पहुँच जाओगे। और डाउन द टाइम थोड़ा लंबा ड्यूरेशन रहता है, बिकॉज आपको ड्यूरेशन में शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं, आपको अपना प्रॉपर टाइम देना है, अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है उसमें, देन यू मूव इनटू द नेक्स्ट वन। राइट। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर लाइक विच डोमेन यू वांट टू परस्यू फर्स्ट। ऑडिटिंग में जाना है तो, ऑडिटर बनना है तो? ऑडिटर जाने के लिए तो फिर आपके पास फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ISO को इम्प्लीमेंट करोगे कैसे। एवरीथिंग स्टार्ट विद ISO देन, क्योंकि बेसिक 27001 का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना है। अगर आप वो समझ पाए कि उसके क्लॉजेस क्या हैं, क्यों वो क्लॉजेस हैं, क्या करते हैं वो क्लॉजेस, और उसके बाद आपके पास 93 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, अब वो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या सीक्वेंस रहेगा उसका, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग देन ओनली यू विल बी मूव फॉरवर्ड। तब आप एक ऑडिटर के माइंडसेट को टच कर पाओगे। इट्स नॉट दैट कि आज आप फर्स्ट डे से ऑडिटर बन के बैठ जाओगे। ऑडिटर इज समवन जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो आपको वही चीज़ मांगेगा जो उसको लगता है कि हाँ गैप हो सकता है और आप उसमें फंस सकते हो। उसका एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर है, वो उसको फॉलो करेगा, जो जो गैप्स मिलते जाएंगे वो आपको हाईलाइट करता चला जाएगा। और सीसा वाला क्या करता है? सीसा का तो माइंडसेट ही है, ऑडिट माइंडसेट डेवलप करता है सीसा। ठीक है। वो माइंडसेट अगर आप पे डेवलप नहीं है तो आप सीसा कर लो, आपको वो माइंडसेट की अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। अच्छा, सिंपल आंसर, सिंपल बहुत आंसर। सही। आप ये सोचो कि एक सर्टिफिकेशन आपको क्या कर सकता है, बस वो आपका एक माइंडसेट डेवलप कर सकता है। अगर आप सीसम करते हो या CISSP करते हो, दैट विल थिंक लाइक अ मैनेजर। ठीक है। यस। अब कोई बंदा आपसे रेफरेंस चाहता है कि शिवम मेरे को बताओ यार कि मेरे को एक अच्छा करियर बनाना है, आपसे रेफरेंस चाहता है, कहाँ मैं अच्छा बना सकता हूँ, कहाँ मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है, इन सब में जो भी ऑप्शंस हैं? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट किस में है। अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओगे तो वैसे जनरली मैं पूछूं, जनरलाइज्ड टर्म में बताओ कि क्लाउड सिक्योरिटी, IAM या फिर GRC, कहाँ पे बंदा वो ही कैन डू बेटर? cloud security is a very demanding domain these days. ओके। So best one is go for the cloud, but before cloud you must have good understanding about network and endpoint Excellent. security first. Then after you have a good understanding about all these three, then you can go for a GRC, ग्रेट। because GRC is on the paramount side, because the thing is there you have to take some decisions from the management end. अब आते हैं अपने रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ओके, सो वन बुक एवरी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट रीड। The Art of Deception by Kevin Mitnick. One that tells you about how humans are more vulnerable than machines. नाइस। वन हैबिट दैट चेंज योर करियर। Continuous curiosity of scratching the things from I the agree. deeper side. राइट। वन मिथ अबाउट cyber security you want to bust? It's not about like hacking the things. It's about like getting into. You have to develop the mindset. Everything have a different perspective. Done. Dubai in one word? Possibility. One cybersecurity tool that one must master. At present, you can say the OSINT tools are good, because open source tools, if you have good understanding, then it can help you on a daily up-to-date task as well. Work in India or move abroad? I would say moving abroad. Certification or skills? Skills, I would say. I think this is more than enough for the day, and I really enjoyed the conversation. It's something, I forget that I'm taking your, this podcast is just to take your knowledge. Like I'm just, filling myself with a lot of information, and it was really amazing. And guys, if you really enjoy the conversation with Shivam, so feel free to ask any question in the comment section, and do not forget to subscribe if it's your first time you visited our podcast. So do subscribe, share and like. Thank you very much. Thank you, Shivam. Thank you very much. Thank you, Nityan. Thank you for giving me this opportunity. It's a privilege to be here. Great.